Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 8. The chapter which we are related with is depreciation. आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक नई चीज़ हमने सीखनी है. द ट्रक वॉज सोल्ड. So it's very important topic and we are doing the same thing or selling the asset for the very first time. In previous question, we have never sold our asset. When asset is sold, there are several matters related to it. It is possible after selling your asset, you may get profit, or it may be possible you will be facing loss. In Pakistani point of view, or in Asian point of view, normally you can get profit while selling your second hand asset. While selling your asset, it may be possible you are getting profit. Like when we are selling cars in Pakistan, normally whenever you will sell your car, you will get profit. While the concept of getting profit in European areas or in America is little different. There is less chance of getting profit while selling an old car. So we will now learn how to sell that asset, how you will enter these, how we will generalize, how we will enter this journal entry into ledger, and similarly we will see if there is profit, what journal entry and how you will put in ledger. And after creating sale of an asset, we will see profit or loss of an asset. जब एसेट बेचेंगे तो ये भी पॉसिबल है कि लॉस हो जाए और ये भी पॉसिबल है कि प्रॉफिट हो. उसकी जर्नल एंट्री भी देखेंगे और उसको इसके लेजर में कैसे पोस्ट करना है उसको भी देखेंगे. सो वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन. लेट्स बिगिन. A firm purchased second-hand truck 1 lakh 1st January 19. Spent 40,000 overhauling, and we know that uh, the expense upon asset, we will debit asset. Installation, erection, manufacture, construction, purchase and addition, and one new word you can use, overhauling. Overhauling छोटा मोटा expense नहीं होता. जब भी सेकेंड हैंड ट्रक के ऊपर आप ओवरहॉल कर रहे हैं तो वो कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है और उसमें आपने ट्रक एसेट मशीनरी को ही डेबिट करना है जैसे हमने पहले सीखा. अच्छा जी, सेकेंड इंपॉर्टेंट मैटर इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. वो 10% दिया हुआ है. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग दिया हुआ है. 22 को चेंज आई है, 19 से लेकर 22 तक हम ओपन है, हम करते जाएंगे 10% रिड्यूसिंग के साथ. सो द फर्स्ट स्टेप is to put our date. कब खरीदा? Second hand truck was purchased on January 19. So you will put 2 cash and value of asset was 1 lakh. After that you have spent some amount on expenses, that is 40,000. So you will put over here 40,000. So actually the value of asset is 140,000. Now at the end of first year, 31st December 19, there you will charge your depreciation. And how you will charge? Since it's reducing balance, the balance in current year is 140,000 and the rate of depreciation is 10%. So simply you will charge this depreciation. As you know, value of asset in current year is 140,000, then 10%. Depreciation is charged. Now our procedure of calculation of balance would start. First step, take total of both sides and total has been done. Now smaller side will be chosen and as usual December 19 ending date, and by balance this would be considered as carried down. कैसे calculate करेंगे balance? You will take larger sum and then subtract smaller sum, 14,000. So you have got
larger sum was 140,000 minus smaller sum 14,000. So you have got your first is completed. Now January 20, here you will brought your balance down, and this balance closing balance of previous year, opening balance of next year. Similarly, you will charge depreciation December 20, and here since we are following diminishing balance method, current year balance is 126,000, and then you will take 10%. I'm sure you people are understanding well. 126,000 was current value because we are following reducing balance. So multiply by 10 divided by 100 कर दें. Depreciation आ गई और आपने next काम balance निकालने का करना है. So here total of both sides you will calculate. Then you will go to the smaller side. December 20. This is your smaller side, and here you will calculate your balance, and that would be carried down. And how you will calculate? Take larger sum minus smaller sum, which is 12600. You have got closing balance of second year. अब चलते हैं जी जनवरी 21. अच्छा, keep it in mind, in 22 there is a difference. On 30th June 22 truck was sold, so we will go just in a smooth way in this year as well. Balance brought down. Closing balance of previous year would be opening balance of next year. Then December 21, you will charge your depreciation. And how you will charge this? Current year value is 113,400 multiplied by 10 divided by 100. All right. जरा बताएं ये 113,400 क्या चीज है? So majority, I am very sure they know that this is current value of asset and 10% is rate of depreciation. ले जी calculate हो गया हमारे पास depreciation, and now we are going to calculate our balance. और balance के लिए आपको ऐसे ही एक साइड का टोटल किया और सिमिलरली आपने साइड का भी टोटल कर लेना है. Smaller side will be chosen, December 21, and here you will calculate balance, and this would be carried down. And how you will calculate? इतनी दफा बोल चुका हूं तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए. Larger sum minus smaller sum 11340, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 102,600. लेकिन लास्ट ईयर स्टार्ट होने लगा, आपने बहुत केयरफुल होके अब बात को समझना है. January 22, first step is to brought balance down. So we are bringing down, और उसके लिए वही है closing balance of previous year is opening balance of current year. अच्छा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है. On 30th June 22 ट्रक was sold. 22 को आपने ट्रक को सेल किया. अब उसके लिए आपको यहाँ आना है. ये थी मशीन, आपने जब खरीदी तो मशीन टू कैश. आज आप मशीन बेच रहे हैं तो फिर एंट्री क्या करेंगे? जब बेचेंगे तो आएगा क्या? कैश, और फिर इसके साथ आप मेंशन कर दें टू मशीन. समझ आ गई? जब you have bought your machinery, entry was machinery to cash, and now you are selling it, so cash to machine. Machine is credit. अब आप इधर आए. यहाँ पर as usual आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मगर यहाँ बहुत और गौर करना पड़ेगा. आप ध्यान से देखें, ये जून को उसने ट्रक बेच दिया और हमने 22 तक का ही बनाना है. तो अब मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन कितनी देर की लगेगी. आपको दो तीन बातें समझनी है. उनमें से पहली बात, यू हैव सोल्ड योर एसेट ऑन 30th June. So it's a very simple thing. Use your common sense. After 30th June, asset would not be present because you have sold your asset on 30th June. तो depreciation भी 30th June तक लगेगी. अब इसके बाद आप यहाँ पर normally what date you were putting? December, but here on June
विच डेट आई एम टॉकिंग अबाउट? जून 22 आपने उसको बेच दिया, और किस जून को बेचा? 30th जून को, यानी जून एंड हो रहा था। तो अब कौन से मंथ्स गिनेंगे, जून के बाद वाले या जून से पहले वाले? विच मंथ्स वी विल काउंट, वेदर वी विल बी काउंटिंग मंथ्स आफ्टर जून और मंथ्स बिफोर जून? जब एसेट बेच ही दिया तो उसके बाद तो डेप्रिसिएट नहीं होगा ना हमारे पास, सो वी विल बी काउंटिंग नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर. So depreciation would be from January to June. January was the start and June was the end, because after June we have sold that asset. Alright, so first we will calculate depreciation. और कैसे calculate करेंगे? ये asset इस time closing में 102,060 and then multiply by 10 divided by 100. अब गौर से देखिए, since you are calculating this depreciation upon June, starting month was Jan, so January, February, March, April, May, June, 6 months depreciation you will be calculating. अच्छा जी, अब ऐसे ही एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. 102,060 that was current value of asset, then 10% was rate of depreciation, and then 6 months you will choose 6 months you will choose over here. So you have got your depreciation. अच्छा जी, अब आपने इस एसेट को बेचा है on 30th June. You have sold this asset for ₹60,000. तो जब बेचा है, हमने यहाँ पर एंट्री सीख ली है कि when you will sell your asset तो कैश टू मशीन होगा, ये वाली एंट्री. पैसे आएंगे, मशीन जाएगी. कैश टू मशीन मींस यू विल एंटर इट इन क्रेडिट साइड बिकॉज मशीन इज क्रेडिट. हियर यू विल पुट बाय कैश. अब कितने की बेची है? दैट इज मेंशन्ड इन आवर क्वेश्चन, सोल्ड फॉर ₹60,000. तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे उसे 60,000 का बेच दिया. अच्छा, एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और कॉमन सेंस की बात है कि व्हेन यू विल सेल योर एसेट, how much balance will be present in your account if you will sell your asset. तो जो अक्लमंद लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि जब एसेट बेच ही दिया है तो बैलेंस तो बचेगा ही नहीं. सो जून 22 को आपने उस एसेट को बेच दिया. जब बेचा तो बैलेंस नहीं बचेगा, लेकिन ये तो इक्वल है नहीं. आप देखिए, जब आप इस साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आ रहा है डिफरेंट. यहाँ पे 65, यहाँ पे 102. तो अब आपने याद रखना है, जब आपने एसेट बेच दिया और फिर भी बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब है कि वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा. अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि आपको ये दोनों एंट्री सीखनी है. पहली एंट्री तो ये कि अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अगर होगा तो क्या होगा? लॉस आपका एक्सपेंस है तो आप डेबिट करेंगे, और चूंकि आपको लॉस हुआ, आपका एसेट कम हो गया, एसेट में कमी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. सो लॉस टू एसेट. अच्छा, अब इधर एसेट चूंकि आपकी मशीन हो सकती है. चेक करते हैं इस दफा एसेट कौन सा है? ट्रक है. तो हम जरा टाइटल में भी ये लिख देते हैं कि हम ये सारा अकाउंट ट्रक के लिए बना रहे हैं. आपने देखा, इसको अगर आप गौर से ना भी देखते, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने टाइटल चेंज करना. इधर चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लैंड हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें एज इट इज चलेंगी, सिर्फ टाइटल बदलना है. अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑन एसेट आपने कैलकुलेट किया, ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है. अच्छा जी, लॉस टू एसेट. अब अगली बात आपने देखनी है कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. प्रॉफिट आपकी इनकम होती है, इनकम को आपने क्रेडिट करना होता है. तो अब आप यहाँ पर इनकम क्रेडिट हो जाएगी, और चूंकि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो आप लिखेंगे मशीन टू इनकम.
अब आप इधर आए और देखें कि कमी किस तरफ है, क्रेडिट साइड की तरफ कमी है, इसका मतलब मशीन या एसेट वो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट की तरफ लॉस होता है, वो हम चेक कर लेते हैं कितना लॉस हुआ। आपके एसेट की वैल्यू थी 102,060, जबकि आपने आपके पास जो वैल्यू इस वक्त टाइम आई हुई है वो है 65103। बिल्कुल बैलेंस की तरह ही आप कर रहे हैं और कैलकुलेशन भी आपकी सारी बैलेंस से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अब आपने मुझे बताना है ये क्यों बैलेंस नहीं है। देखें, हमने बैलेंस ही कैलकुलेट किया है, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ऐसे किया। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड वाज 102, टोटल ऑफ क्रेडिट वाज 65103, और सिंपली आपने स्मॉलर सम वाज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सम। तो इस तरह करके आपके पास जो डिफरेंस आया है, फिर ये क्या डिफरेंस है, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपने ये दो एंट्रीज चेक करनी है। अगर क्रेडिट साइड की तरफ कम चीज आ रही है, यानी एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो वो लॉस हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड की तरफ बैलेंस आया, इधर भी आ सकता है बैलेंस, यानी कि ये साइड बड़ी हो जाएगी और ये साइड छोटी होगी, बैलेंस इधर आएगा, तब इसका मतलब है कि मशीन डेबिट होगी, यानी डेबिट साइड की तरफ बैलेंस आएगा तो वो इनकम होगी। अब आपने ये सीखा, चूंकि क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस आ रहा है, तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन होगा 36957। अब चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है 36956। हमने चूंकि एग्जैक्ट सारी चीजें डेसिमल के साथ की हैं, इस वजह से 1 रुपया आगे पीछे होता है इसका। जब आप डेसिमल को छोड़ देंगे तो फिर एक आध रुपया वो मैच करेगा, लेकिन आंसर डेसिमल में आएगा। सो 36957 इज योर आंसर। इसकी भी डेट वही है, क्योंकि जून में आपने एसेट बेच दिया। अच्छा जी, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। आज की जो हाईलाइट एंट्री है वो ये है कि आपने सीखा है कि अगर बैलेंस क्रेडिट साइड की तरफ आया और बेच दिया हुआ ट्रक तो वो लॉस है, अगर बैलेंस डेबिट साइड की तरफ आया और बेच दिया है सर तो वो हमारा प्रॉफिट है। सो प्लीज कीप इट इन माइंड, इसको याद कर लें अच्छी तरह से। एंड आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन। आपसे एक बहुत दफा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको स्किप मत करें, हर स्टेप को गौर से देखें, चाहे आता भी है तो भी गौर से देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर से बेहतर होता जाए। So guys, this was your question. Solution is in front of you. Please solve it correctly and repeatedly 3-4 times. After that, if you feel anything difficult, just message, text or comment. I will try my best to answer your questions quickly. So thank you very much for your time, and it's time to say goodbye. Allah Hafiz.